Today our topic is classification, aims of classification and principles of classification. चैप्टर नंबर 3 में लास्ट जो हमने स्टडी किया था दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स या किस वजह से क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को किया जाता है, एंड व्हाट आर द बेसिस प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. As all you know, there is variety of organisms present on the earth, millions of हैं, and out of that only the जो discovered organisms हैं, out of that 1.5 millions of discovered nowadays animals and the 0.5 of the millions of the plants are. But अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं which are not discovered or scientists are researches on that. टोटल हमारे पास अगर हम बात करते हैं डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो 1.5 along with 0.5 is equal to 2 millions of. अब ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स. आई थिंक सो आप में से बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में होगा देयर इज़ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं द ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफ्स मीन दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड. They are heterotrophs that they can't prepare their food. Some of the organisms can fly, likewise the birds. Some can crawl, रेंगते हैं, likewise reptiles हो गया, जैसे crocodiles हैं for example, turtles हैं. Some are aquatic animals, likewise या plants, जैसे for example animals में हमारे पास fishes आ जाती हैं, plants में आपके पास very common lotus का plant आ जाता है, algae हैं. ठीक है, तो अब देर इज अ वास्ट नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो दैट ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of their similarities and differences, and it is called biological classification or simply classification. What is meant by biological classification, or in simple words classification, that organisms are classified on the basis of the into the groups or subgroups on the basis of their similarities and differences, and it is called biological classification or classification. अब organisms are classified, तो जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन करने के लिए there is some objectives, goals, aims कि जी why should organism classify. And उससे पहले in the topic there is two field of study are discussed, that is taxonomy and systematics. Taxonomy already you have learned in branches of biology, that is the type of or the branch of biology in which we study about the classification of the organisms. Systematics is also the study of classification, but along with the evolutionary history of the organisms. Taxonomy में simply हम लोग सिर्फ classification को study करते हैं, उनके groups and सब groups के divisions को study करते हैं. लेकिन systematics जो है it is more detailed as compared to taxonomy, कि इसमें along with the classification the organisms are studied on accordingly to their evolutionary histories. मीन्स कि उनके ancestors कहाँ थे, कहाँ से उनका origin हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग की क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग के ancestors जो हैं, जैसे एप्स के हवाले से बात की जाती है, गोरिल्लास के बात की जाती है कि यहाँ के जी ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया एक्सेट्रा. अब there are the two main aims of classification, you can say objectives of classification also, that are the number one, to determine the similarities and differences of the organisms, to study them easily. कि organisms को उनकी similarities की बेस के ऊपर, उनकी differences के बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है into groups and सब ग्रुप्स.
ताकि उनकी स्टडीज़ को हम उनको डिटेल स्टडी जब हमने करनी हो तो हमें डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। सेकंड हमारे पास जो एम ऑफ क्लासिफिकेशन आ रहा है दैट इज़ टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका ओरिजिन क्या है, उनके आपस में एक दूसरे से क्या इंटर कनेक्शंस हैं। अब आफ्टर द एम्स द नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है आज के लेक्चर का दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है वो? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एज इन द डेफिनेशन इट इज एक्सप्लेन के classification means the organisms are classified into the groups and subgroups on the basis of the similarities and differences। तो हम उन्हें ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। लाइकवाइज फिजियोलॉजी की बेस के ऊपर, यानी फंक्शनली ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे से इंटरलेट कर रहे हैं। लाइकवाइज मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर कि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। और द मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जो हमारे पास अब एक फील्ड आ रही है दैट इज द जेनेटिक्स, कि उनके डीएनए की कॉम्पोजिशंस क्या हैं, उनसे भी हमें इट इज वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ देयर जेनेटिक्स और द डीएनए कॉम्पोजिशन। अब सिंपल सा रूल है कि ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलैरिटीज और ऑर्गेनिज्म विच आर मोर क्लोजर टू ईच अदर डेफिनेटली दे हैव कॉमन ओरिजिन, यानी उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कोई एक ही होंगे। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनके बीच में अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि देयर एंसेस्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स यानी स्पैरो हो गया फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू योर बुक एग्जांपल, पिजन हो गया और बहुत सारे बर्ड्स हैं। और इंसेक्ट्स अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, बर्ड्स ऑल्सो कैन फ्लाई। इंसेक्ट्स के भी हम कहते हैं जी विंग्स हैं, बट बर्ड्स के भी विंग्स हैं, ठीक है। बट मॉर्फोलॉजिकली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, फंक्शनली तो दोनों के विंग्स जो हैं उनमें फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं, बट व्हेन वी ऑब्जर्व देयर और स्टडी देयर मॉर्फोलॉजी, यानी शक्ल उनकी जब देखते हैं, फीचर्स उनके जो शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इंसेक्ट्स के विंग्स लाइक उस बटरफ्लाई के आपने देखे होंगे, हाउस फ्लाई की ऑब्जर्व किए होंगे, दैट आर वेरी डेलिकेट से थिन से होते हैं, दे हैव नो बोन्स। बट एज कंपेयर टू बर्ड्स विंग्स दे आर बोनी, दे आर कवर्ड बाय द फीदर्स, तो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम जेनेटिक्स की फील्ड में जाके इनको स्टडींगे तो दैट टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देयर कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।